بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ہندو مذہب پر، وہ اس لیے کیونکہ ہندوستان میں جس طرح سے گائے ذبح کرنے کے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کی جان لے لی جاتی ہے، خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے، مسلمانوں کا جینا وہاں پر انہوں نے اجیرن کر دیا ہندوستان میں۔ اس لیے آج ہم اس پر بات کریں گے کہ کیا ہندو مذہب میں گائے کھانا جائز ہے یا کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے آپ کو بات سنائیں گے اور تمام حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قدیم ہندو مت میں گائے کھانا بالکل جائز تھا۔ اس وقت گائے کو کھایا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے جتنے بھی دیوتاؤں کے سامنے گائے کو لا کے پیش کر کے قربان کرنا ایک بہت بڑی سعادت کو سمجھا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا گوشت بنا کر اس میں جتنے بھی رفقا ہوتے تھے، مہمان ہوتے تھے دربار میں، سب کو اس کا گوشت کھلایا جاتا تھا۔ اور یہ سلسلہ جب سے ہندو مذہب چلتا آ رہا ہے اس سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور یہ اسی طرح سے کوئی بھی ایسا ہندو پیشوا نہیں ہے جن کے سامنے یہ عمل نہیں کیا جا رہا تھا، اور بڑے فخر سے یہ لوگ کرتے تھے۔ یہ عیسوی 320 عیسوی کی بات ہے۔ اس وقت جب یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کی وجہ کیا بنی کہ جب اس پر نہ صرف پابندی لگائی گئی بلکہ اس کو ایک مذہب کا رنگ دے دیا گیا، اور یہاں تک کہ اس کے بعد انسانوں کی جان لینا بھی شروع کر دی گئی۔ یہ 320 کے بعد ہندو ریاستیں جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں بننا شروع ہوگی، ان کی تعداد زیادہ ہو گئی، تو اس وقت پھر زمین کو تقسیم کیا گیا، زمین تحفے میں دینا شروع کر دی، آبادیاں بنانا شروع کر دی، علاقوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت پھر زراعت کی بڑی اہمیت تھی، جیسے اب بھی زراعت کا شعبہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس وقت بھی زراعت کا شعبہ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اور کھیتی باڑی کے لیے ایک واحد ذریعہ جو تھا زمین کی کاشت کے لیے، وہ جانور تھے، وہ گائے تھی۔ تو اس طرح جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر جب تقریبات ہوتی تھی اس وقت مہمان نوازی کے لیے گائے کو ذبح کر کے گوشت کھلایا جاتا تھا۔ تو اس وقت پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ گائے کو ذبح کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات جو ہیں وہ بگڑتے جائیں گے، کیونکہ گائے کی مدد سے ہی ہم زمین کو جو ہے وہ سیراب کر سکتے ہیں، زمین پر بیجائی کر سکتے ہیں۔ جیسے اب ٹریکٹر چلتے ہیں زمین پر، اس طرح ہل چلائے جاتے تھے اس زمانے میں، اور بیل کا استعمال کیا جاتا تھا، گائے کا استعمال کیا جاتا تھا، اور ان کی وجہ سے پھر بیجائی کی جاتی تھی، مختلف فصلیں اگائی جاتی تھی۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ گائے کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ دودھ کا استعمال کیا جائے گا، اس سے مکھن حاصل کیا جائے گا، مکھن کو مارکیٹ میں بیچ کے وہ اس کے جو انکم جو ہے وہ حاصل کی جائے گی۔ اس طرح معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ تو پھر برہمن جو تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گائے کو ذبح نہیں کیا جائے گا، گائے کا استعمال کریں گے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے۔ برہمنوں نے یہ اس کا آغاز کیا۔ جو دلت تھے، دلتوں نے اس وقت بھی ان کی بات نہیں مانی تھی، وہ گائے اس وقت بھی ذبح کرتے تھے، گوشت کھاتے تھے، لیکن برہمنوں نے جو آہستہ آہستہ اس کی کمپین کرنا شروع کر دی، اس کے ساتھ اپنا کاروبار بھی کرنا شروع کر دیا، اور اس کو آہستہ آہستہ جب چھٹی صدی کا آغاز ہوا عیسوی کا، سن 600 عیسوی کا، تو اس وقت تک یہ کافی کمپین چلا چکے تھے، اور تقریباً اس کو ایک مذہب کا رنگ دے دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس کی یہ سزا کا تعین کیا گیا کہ جو بھی گائے کاٹے گا، جو ذبح کرے گا، جو اس کا گوشت کھائے گا، وہ دلت ہوگا۔ پہلے تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ایک لائن کھینچ دی اور دو حصوں میں تقسیم کیا ہندوؤں کو، برہمنوں نے، کہ جو گائے کا گوشت کھائے گا وہ دلت ہوگا۔ تو وہ اس وقت جو گوشت کا استعمال کرتے تھے، اس وقت پھر دلتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، زیادہ تعداد میں دلت تھے، تو انہوں نے ان سے بائیکاٹ بھی کرنا شروع کر دیا۔ جو گائے کا گوشت کھاتے تھے، وہ کوئی بھی ہوتا تھا، کسی بھی اس کا ذات سے تعلق ہوتا تھا، لیکن اسے دلت کہا جاتا تھا۔ پھر جیسے جیسے ریاستیں بڑھتی گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سزا کے طور پر یہ سزا کا تعین کیا کہ جو گائے کاٹے گا، جو گوشت کھائے گا، اسے برہمنوں کو جو کھانا کھلانا پڑے گا، اس کی ایک تعداد کا تعین کر لیا گیا کہ اتنی تعداد میں برہمنوں کو کھانا کھلانا پڑے گا جو گائے ذبح کرے گا۔ وہ بھی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب تقریباً 10ویں عیسوی کی بات ہے،
उस वक्त तक फिर इन्होंने एक मज़हब का रंग मुकम्मल तौर पर गाय ज़िबा करने को दे दिया। लेकिन इनकी कदीम हिंदू मत की जितनी भी किताबें हैं, मज़हबी किताबें हैं, उनमें आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि गाय का गोश्त खाना हराम है, या गाय का गोश्त खाना मना किया गया है, या गाय को ज़िबा नहीं किया जा सकता। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और ना ही गाय की कोई पूजा करने के कोई आपको इस तरह की चीज़ें इनकी कदीम मज़हबी किताबों में मिलेंगी। ये उसके बाद ही तमाम चीज़ें इन्होंने ऐड की हैं। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा है, और गोश्त पर इन्होंने जुर्माना आयद करने का फ़ैसला किया। फिर ये असल फ़साद कब हुआ, जब 19वीं सदी का आगाज़ हुआ था। 19वीं सदी में फिर ये शिद्दत इख्तियार कर गया। फिर यहाँ तक कि इन्होंने लोगों की जान लेना शुरू कर दी थी ब्राह्मणों ने। और दिल्लत जो है वो गोश्त खाते थे, ब्राह्मण जो है वो, उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को भी मारना शुरू कर दिया। बड़े सगीर में हिंदुओं की एक बड़ी तादाद थी, तो बड़े सगीर में सबसे पहले ये मामलात शुरू हुए इंसानों की जान लेने के। यहाँ पर जो अगर मुसलमान खाते थे, जो अक्सरीती इलाके थे हिंदुओं के, वहाँ पर मुसलमान भी अगर गाय को ज़िबा करते थे तो ये मुसलमानों को कत्ल कर देते थे। वहाँ पर दंगे फसाद किए जाते थे। इस तरह का अमल बड़े सगीर में शुरू हो चुका था। ये 19वीं सदी में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की गई है। ये कैंपेन का आगाज़ किसने किया? ये एक हिंदू था, स्वामी दयानंद। इसने इस कैंपेन का आगाज़ किया, दयानंद ने, और उसके बाद फिर हिंदुओं को अपने साथ मिलाता गया, और फिर यहाँ तक बात पहुँची कि लोगों की जान लेना शुरू कर दी। हिंदुस्तान की आज भी बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर ब्राह्मणों के अलावा हिंदुओं के तमाम लोग, जितने भी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो गाय का गोश्त खाते हैं, गाय को ज़िबा करते हैं। दो रियासतें को मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ, केरला रियासत और तमिलनाडु। वहाँ पर आज भी बड़ी तादाद में लोग गाय का गोश्त खाते हैं, गाय को ज़िबा करते हैं। इसके अलावा हरियाणा में ब्राह्मणों के अलावा जितने भी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो भी आज भी गाय का गोश्त खाते हैं, गाय को ज़िबा किया जाता है। ये सिर्फ ब्राह्मणों ने एक ये मज़हब का इसको रंग दिया, उसके बाद इसको इंतहा पसंदी की तरफ ले गए, इसको जवाज़ बनाकर मुसलमानों को, हज़ारों की तादाद में मुसलमानों की अब तक जान ले ली गई है। भारत में इस तरह से जुल्म किया जाता है, और इस पर बाकायदा तौर पर कानून साजी की गई है। कानून साजी की मैं बात करूंगा तो इंसानियत का सर शर्म से झुक जाएगा कि किस तरह से हरियाणा में कानून साजी की गई है। हरियाणा में अगर आप बंदा मार दें, किसी इंसान की जान ले लें, तो आपको सिर्फ 2 साल कैद काटना पड़ेगी, या थोड़ा बहुत जुर्माना किया जाएगा, उसके बाद आपको रिहा कर दिया जाएगा। मगर अगर आप गाय काट लेते हैं, गाय का गोश्त खा लेते हैं, तो आपको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जाएगी बामुशक्कत। आपको कैद भी काटना पड़ेगी और आपको मुशक्कत भी करना पड़ेगी। अंदाज़ा करें कि इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान को छोड़ के अगर इंसान को मार दें आप रोड एक्सीडेंट में, हरियाणा में अगर आप किसी की भी जान ले लें, तो आप 2 साल के बाद रिहा हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 साल सज़ा सुनाई जाएगी। मगर अगर किसी गाय को आपने काट लिया, गाय को मार दिया, गाय का गोश्त खा लिया है, तो आपको 10 साल जेल की सज़ा भुगतना पड़ेगी। ये इतने शर्मनाक कवानीन बनाए गए हैं वहाँ पर। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इनके मज़हब में, हिंदू मज़हब में कहीं पर भी कोई मजहबी हैसियत गाय की नहीं है। अगर गाय की मजहबी हैसियत होती, तो जब गाय मर जाती है तो फिर ये खुद चमारों को बुलाते हैं, चमाड़ वहाँ पर आते हैं और गाय के गले में रस्सियाँ डालते हैं, पाँव में रस्सियाँ डाल के सड़क पर घसीटते हुए और गाय की जो लाश होती है उसको ले जाया जाता है, और जो वीरान है वहाँ पर उस लाश को फेंकते हैं। जब तो जानवर वहाँ पर भेड़िए हैं, कुत्ते हैं, इसके अलावा परिंदे आके वो गोश्त खाते हैं, और चमड़ा उस गाय का उतार लिया जाता है, और फिर उसी चमड़े के जूते बनाए जाते हैं, जिसकी ये पूजा करते हैं, जिसको ये माँ का दर्जा देते हैं, और इसको मज़हब का रंग दे दिया है। फिर उसी के चमड़े के जूते बनाकर वही हिंदू जूते इस्तेमाल करते हैं, वो जूते पाँव में डालते हैं उसकी खाल के, उसके चमड़े के। और जो गोश्त होता है, जो इंसानों पर पाबंदी है गोश्त खाने पर, वही गोश्त जानवर खा रहे होते हैं, कुत्ते खा रहे होते हैं, बिल्लियाँ खा रही होती हैं, परिंदे खा रहे होते हैं, या भेड़िए खा रहे होते हैं, वही जानवर। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़हब में कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है। हिंदू मज़हब में भी, हिंदुओं की भी कदीम किताबें आप पढ़ के देख लें, गाय के गोश्त खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये ब्राह्मणों ने
یہ किया है, ब्राह्मण जितने भी हैं उन्होंने ये किया था, और असल यही था कि मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए इसको गाय को इस्तेमाल किया जाता था। ज़मीन काश्त की जाती थी, उसमें ये हल चलाने के काम आते थे जानवर। आज भी बहुत सारे ऐसे देहात होंगे जहाँ पर आपको पता है कि जानवरों के ज़रिए, गाय के ज़रिए, बैल के ज़रिए हल चलाया जाता है। तो इस वजह से इस पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन वहाँ पर इंतहा पसंदी के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके इसके अलावा गाय को इन्होंने एक और नाम दिया है, पंज गो का नाम दिया गया। पंज गो क्या चीज़ें हैं, आप अंदाज़ा करें कि किस लेवल तक ये चले गए हैं। हिंदू मत जो है इंतहा पसंदी की किस हद तक चले गए हैं, और उन्होंने क्या क्या इकदाम किए हैं इसको ये साबित करने के लिए, ये कि बिल्कुल ये हमारे मज़हब में ये जायज़ है कि गाय को नहीं काटना चाहिए। लेकिन मैंने आपके सामने मिसाल रखी है, कोई भी बाशऊर बंदा इसके बाद अंदाज़ा लगा लेगा कि वाकई ही अगर मज़हब में इसकी कोई अहमियत होती तो उसके बाद मरने के बाद गाय का ये हशर ना किया जाता। पंचगो का नाम किस चीज़ों को दिया गया है? गाय का दूध, गाय का मक्खन, गाय का घी, गाय का पेशाब और गाय का गोबर। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसको मिक्स करके जब बच्चा पैदा होता है तो उसको खिलाई जाती है। जो ख़ातून जिसके यहाँ डिलीवरी होती है उसको ये चीज़ें चटाई जाती हैं। अगर किसी की शादी होती है, किसी बेटी की शादी होती है, तो उसको ये मजहबी तौर पर, अच्छे शुगन के तौर पर ये पांचों चीज़ें मिक्स करके खिलाई जाती हैं। अगर किसी को ये समझते हैं इसने कोई गुनाह किया है, ये पलीत हो चुका है, नापाक हो चुका है, तो उसको भी ये 5 चीज़ें, पंज गो जो है वो खिलाया जाता है कि ये पाक हो गया है, ये गुनाहों से पाक हो गया, इसकी जो नापाकी थी वो ख़त्म हो चुकी है। आप अंदाज़ा करें कि इस तरह की चीज़ें भी अभी तक चल रही हैं। लेकिन गाय का काटना, गाय का खाना, ये हिंदू मज़हब में कहीं पर भी मना नहीं है, क्योंकि उनके देवताओं के सामने ये गाय पेश की जाती थी, उसकी कुर्बानी की जाती थी और गोश्त खाया जाता था, मेहमानों को खिलाया जाता था। इस पर पाबंदी की वजह तारीख भी यही बता रही है, मज़हब भी हिंदुओं का यही बता रहा है कि मुआशी हालात की वजह से अगर गाय को काट देते थे तो उनके पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं था ज़मीन काश्त करने के लिए, दूध की सप्लाई के लिए, मक्खन के लिए, उनका फुकदान पैदा हो जाता था, इसलिए फिर इसको खाना मना किया गया था। तो नाज़रीन, ये चीज़ आपके सामने बहुत अहम चीज़ थी जो रखनी थी। लेकिन हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों को आज भी गाय ज़िबा करने के नाम पर, गाय स्मगलिंग के नाम पर ज़िंदा जला रहे हैं, उनकी जानें ले रहे हैं। अगर उनके मज़हब में ये जायज़ है तो मुसलमानों के मज़हब में तो बिल्कुल जायज़ है। अगर हिंदुओं के मज़हब में ये खाना दुरुस्त नहीं है तो मुसलमानों के मज़हब में तो खाना दुरुस्त है। तो आप ना खाएं अगर आप समझते हैं, लेकिन दूसरे पर पाबंदी लगाना ये इंतहाई नामुनासिब है और गैर अखलाकी है। कोई भी मज़हब किसी को भी इस तरह की खाने पर पाबंदी आयद नहीं करता है। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम चीज़ थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।